Good morning students. This is video lecture 4, standard 9, subject science to biology, classification of plants, and subtopic is cryptogams. So in last video we have seen the division cryptogams. Cryptogams are divided in different groups again. So let us revise that part again. Division plantae. First of all, division plantae is divided into two different groups, means cryptogam and phanerogams. Cryptogamy is scientific name, phanerogamy is again the scientific name. So what is the difference between cryptogams and phanerogams? Let us revise one more time that crypto means hidden. The reproductive organs in the group cryptogams are hidden. They are not specific or they are not well developed. Phanerogamy means well differentiated reproductive tissues. These plants, including in this group phanerogamy, are having well differentiated reproductive tissues. And then in what way cryptogams reproduce? So cryptogams reproduce by means of spores. Cryptogams reproduce by means of spores. Spores are very tiny structures by means of which cryptogams means the plants included in this group are reproducing. Then phanerogamy, reproduction with the help of seeds. Seeds are formed in phanerogams and they can reproduce by means of seeds. Then this cryptogamy is again divided into two different groups. Which groups are they? Non-vascular cryptogams and vascular cryptogams. Then what is non-vascular cryptogams and what is vascular cryptogam? Vascular word itself suggests that vascular bundle having xylem for the conduction of water and phloem for the conduction of that is food. So these organisms do not have, these plants do not have vascular bundles, that's why they are included in non-vascular cryptogams. So which are non-vascular cryptogams? These non-vascular cryptogams are thallophytes or thallophyta and bryophyta, means division 1 thallophyta and division 2 bryophyta. These two divisions have been already studied by us in last videos. So thallophyta again divided into algae and fungi. यहाँ तक का पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, ये दोनों डिवीजन की स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की हुई है. So today we are going to understand vascular cryptogams. Vascular cryptogams include only one group, that is pteridophyta, division pteridophyta. अभी आप लोग बोलेंगे कि हमारे बुक में ऐसा तो दिया हुआ नहीं है कि vascular cryptogams, non-vascular cryptogams, but ऐसा है. आप ये आपके ध्यान में रखो. Mainly cryptogamy have three डिविजन्स. कौन से हैं? डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना है. बट इनमें ये दोनों जो है वो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है एंड ये टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है, डिवीजन है, वो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है. इसमें आते हैं सभी फर्न्स. एंड हियर phanerogamy again divided into two different divisions, which are the gymnosperms and angiosperm. सो ये हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा. द वर्ड टेरिड और टेरिड मीन्स फर्न. ये टेरिड वर्ड का मीनिंग है फर्न एंड फाइटा यू ऑलरेडी नो दैट फाइटा मीन्स प्लांट. सो फर्न फैमिली, इसको हम फर्न फैमिली भी बोल सकते हैं. टेरिडोफाइटा जो है पूरा इसमें फर्न्स आते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम देखेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ division Pteridophyta, or the plants belong to division Pteridophyta.
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इसके पहले कंपैरेटिवली देखिए, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा जब हमने पढ़ा तो वहां पे क्या था, द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक इन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में भी प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, मीन्स वहां पे वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम्स, लीव्स नहीं थे। यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये इवोल्यूशन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्रिप्टोगेम से ही बिलोंग करता है ये डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि यहाँ पे जो रूट्स है, स्टेम्स है एंड लीव्स है, ये वेल डिफरेंशिएटेड है। ये प्लांट्स में रूट्स, स्टेम, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है फर्न प्लांट की, आपके बुक में भी पेज नंबर 77 पे आप देख सकते हो। सो यू कैन सी दिस इज लीफ, ये कंप्लीट लीफ है, नहीं तो आप इसको लीफ बोलोगे। दीज आर लीफलेट्स, क्या है, लीफलेट्स है, जो पिन्ना है, जो लीफ का पिन्ना, पिन्ना मीन्स जो सरफेस हमको दिखता है, लीफ पिन्ना का सरफेस ये कट होके डिवाइड हो गया है छोटे छोटे लीफलेट में। यू कैन सी सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे अगर आप देखोगे आंवला है, इमली का, देन टैमरिंड है, वो प्लांट्स में भी वो लीफलेट्स है, छोटे छोटे क्या रहते हैं, लीफलेट्स, एंड दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज लीफ एंड स्टेम इज हियर in the soil, and these are roots. Roots are also present for absorption of water and mineral from the soil. And what is the function of leaf? Leaf can perform the process of photosynthesis. These are basics. Well developed roots, stem and leaves are present in case of pteridophyta. Then separate conducting tissues are present. So comparatively see that thallophyta and bryophyta, the plants belonging to this group, thallophyta and bryophyta, they do not have vascular bundle or vascular tissues. Hence they are included in the group non-vascular cryptogams, and here vascular bundle or conducting tissues are present. Conducting tissues, which are the conducting tissues? Xylem and phloem. Xylem conducts water and phloem conducts food to all over the plant body. So that is why they are called as vascular cryptogams. Then ये xylem and phloem होती कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया हमने, पूरे बॉडी में होती है xylem and phloem, लीफलेट्स तक भी जाती है xylem and phloem का पार्ट। दिस रैचिस जो है इसका लीफ का जो स्टॉक वगैरह है वहां से भी जाती है, उसके बाद स्टेम में भी होती है, रूट्स में भी होता है xylem and phloem। xylem and phloem ये साथ में होते हैं। तो ये पूरे बंडल को, मतलब ये जो आपको, ये है स्टेम का टीएस, सपोज दिस इज द स्टेम ऑफ, और दिस इज सपोज दिस लीफ का ये मिडल पोर्शन, इसको हम जब ऐसे आड़े में कट करते हैं उसको बोलते हैं टीएस, मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन लेके अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टिलर रीजन दिखेगा। स्टिलर रीजन मीन्स जो मिडल पोर्शन है आपको वो अलग से दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे होती है, यहाँ पे देखो ये स्टेम का पोर्शन है, इंटरनल सभी स्टेम का पोर्शन, ये मिडल पोर्शन में आपको एक स्टिलर रीजन दिखेगा, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं इसको। एंड ये वैस्कुलर बंडल के अंदर आपको यहाँ रेड कलर में जो मैंने टिश्यूज को स्पेसिफाई किया है ये है xylem टिश्यूज, एंड दीज आर, ये मिडल पोर्शन में जो ब्लू कलर में टिश्यूज आपको यहाँ पे दिखाई गई है वो है फ्लोएम टिश्यूज। तो xylem टिश्यूज का क्या फंक्शन है? वाटर का कंडक्शन करते हैं। वाटर कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा वाटर? सॉइल से, मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में पूरे प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। फिर फ्लोएम का क्या फंक्शन है? जो फूड प्रिपेयर होता है, फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स। तो ये लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगी। तो इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। सो फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन के प्रोसेस में वैस्कुलर बंडल कहाँ पे प्रेजेंट हुआ था? टेरिडोफाइटा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में।
जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है इस ग्रुप के, वो ग्रुप में यहाँ पे सिंपल टाइप का वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो आपको आगे पढ़ने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतनी बात ध्यान में रखना है, फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल आया था, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। अभी तक हमने ये थोड़ा चेंज देखा था, लेकिन टेरिडोफाइटा में भी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं है एज दैट ऑफ व्हाट, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। मतलब दिस इज सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, लेकिन दिस इज सिमिलैरिटी दैट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। फिर यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टू टाइप से होता है, मतलब टू टाइप्स कैसे हैं, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट बॉडी से, प्लांट के कोई भी पार्ट से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बोला था, ये टाइनी स्पोर्स मतलब टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स असेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। अनदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन फर्न्स इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअली फर्न्स आर और टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। सो व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है, एक मेल पेरेंट चाहिए, एक फीमेल पेरेंट्स मीन्स और मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स जो रेडी होते हैं, मीन्स मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट क्या है, ओवम। सो इनका जब फ्यूजन होता है तो बाइन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल फॉर्म होती है, इट इज कॉल्ड एज जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एंड न्यू प्लांट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो ये है जाइगोट, मीन्स रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स टेक्स प्लेस असेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें एग्जाम्पल्स है फर्न, नेफ्रोलिपिस, टेरिस, लाइकोपोडियम, अलग अलग टाइप के फर्न्स। अभी यहाँ पे एक लीफ का और लीफलेट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये जो लीफलेट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फर्न का एक सिंगल, ये वाला सपोज लीफलेट है, इसको हमने थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पे डायग्राम निकाली हुई है। तो आप देखेंगे ये मार्जिनल रीजन है लीफलेट का, इस मार्जिनल रीजन पे यहाँ पे सोराय प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो स्पोर फॉर्मेशन होता है मार्जिनल रीजन में, यहाँ पे क्या है, सोराय, इसको क्या बोलते हैं, सोराय। सो सिंगुलर मतलब सिंगल को बोलते हैं सोरस। ये सोरस के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, क्या होते हैं, स्पोरेंजिया, दीज आर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब एक ऐसी पाउच, एक ऐसी बैग, एक ऐसा कप, एक ऐसी कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं उसी टाइप से यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया में, एंड ये स्पोर्स डस्ट के जैसे होते हैं। अगर किसी के यहाँ पे ये फर्न होगा, मतलब ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, अपने गार्डन्स में बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि लोअर लीफ के, लीफलेट के लोअर मार्जिन में हाँ, एक अपर साइड होता है लीफलेट का जो लाइट कलर का होता है, एंड लोअर साइड थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो उसके ये मार्जिन्स में, लोअर मार्जिन्स में यहाँ पे कप्स होते हैं, एंड सॉरी लोअर मार्जिन नहीं, अपर मार्जिन में ही यहाँ पे जो कप्स होते हैं, वो कप्स मतलब सोराय, एंड सोराय के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है, एंड स्पोर फॉर्मेशन के बाद में मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप टेरिडोफाइटा, एंड विल सी
some similarities and differences in the body structure of these three groups or three division. This is homework to you. You have to mention, you have to find similarities and differences between these three groups, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Next we'll see phanerogams in next video. Till then, study karo, stay home, stay safe. Goodbye. Thank